Hello students, welcome to English classroom. Today we will study a lesson in English for students of class 9th. The name of the chapter is The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. This is from your Moments book. There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there. Ahead of him, he turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला. उसने जब टर्न करके देखा अपने माता पिता को देखने के लिए तो वो दोनों आगे भी नहीं थे. उसने पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो वो वहाँ पे भी नहीं थे. तो मतलब वो हर जगह पर उसको देखा, मतलब पेरेंट्स को देखा, उनका कोई निशान भी नहीं था. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic-stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. "Mother, father!" he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. तो यहाँ पर पहले मीनिंग्स देखते हैं. जर्क मीन्स मूव, यानी झटका लगा उसे. फियर्स मीन्स एंग्री. Flushed means wet with water. Convulsed means trembled with fear, यानी डर से कांपने लगा. Panic stricken means fear struck, भयभीत. Sob means weep. And wailed means mournful cry, चीख. तो जब उसको वहाँ पर देखा उसने कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं हैं, तो उसके सूखे गले से एक बहुत ज़्यादा तेज गहरी चीख निकली और वो झटके से जहाँ पर खड़ा था वहीं पर वो डरने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगा, "मम्मी पापा, मम्मी पापा!" ये बात कहने लगा. उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे. बड़े ही गर्म थे वो और बहुत तेज़ी से आंसू निकल रहे थे. उसका जो चेहरा था वो डर से भरा हुआ था. घबराहट में उसे पता नहीं चल रहा था कि उसने कहाँ जाना है. वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. उसको समझ नहीं आ रहा था, कभी आगे भाग रहा था, कभी किसी दूसरी डायरेक्शन में भाग रहा था. वो ज़ोर ज़ोर से चीख मार मार कर रोने लगा, "फादर, मदर!" और उस टाइम उसके जो येलो कलर की जो टर्बन थी यानी पगड़ी थी वो खुल गई थी. उसके कपड़े मैले हो गए थे. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distances on the green grass he could see, through his filmy eyes, men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. तो इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि वो गुस्से में, उसको गुस्सा आ रहा था. कुछ देर तक दौड़ने के बाद कभी आगे जा रहा था, कभी पीछे दौड़ रहा था. मतलब दौड़ने के बाद वो हार के खड़ा हो गया एक जगह पर और उसकी जो चीखें थी अब वो सिसकियों में बदल चुकी थी. और थोड़े से डिस्टेंस पर वो कुछ लोगों को अपनी आईज से, जो मतलब क्या है, इस टाइम सिसकियों की वजह से क्या हो चुकी थी, धुंधली पड़ चुकी थी, मतलब रोने की वजह से धुंधली हो रही थी, उनकी तरफ उनको बातें करते हुए देख सकता था. उसने अपने माता पिता को, जो वहाँ पर जो ग्रुप बनाकर येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे, उनमें उनको तलाश रहा था, अपने माता पिता को तलाश रहा था, लेकिन वो उनमें से कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था. ना तो उसके मम्मी दिख रही थी, ना उसके पापा दिख रहे थे. और ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या है, वो बिना बात किए ही हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं. जो वो लोग दिख रहे थे ना उसको, उनकी बात की जा रही है कि उनको, उससे ऐसे लग रहा था कि वो बिना बात के ही हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं.
He ran quickly again, this time to a shrine. Shrine means temple, to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother, father. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro. By their brutal movements, he might have been trampled underfoot, had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" A man in the surging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. तो इसमें मैंने आपको बताया श्राइन. श्राइन मीन्स टेम्पल. कंजस्टेड. कंजस्टेड मीन्स फील्ड विद, यानी भरा हुआ. कंजस्ट था, बहुत ज्यादा भीड़ थी वहां. जोस्टल. जोस्टल मीन्स टू पुश, यानी धक्का देना. हैफ्टी. हैफ्टी मीन्स हैवी. ब्रूटल. ब्रूटल मीन्स क्रूल. ट्रैम्पल. ट्रैम्पल मीन्स क्रश. सर्ज. सर्ज मीन्स मूव क्विकली. स्टूपिंग. स्टूपिंग मीन्स बैंडिंग विद डिफिकल्टी, यानी बड़ी मुश्किल से झुकते हुए. फिर उसके बाद वो जो बच्चा था बहुत तेजी से मंदिर की तरफ भागा, जहां पर उसको लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी. और उस जगह पर वो जो पूरी जगह थी वो बहुत सारे आदमियों से भरी हुई थी, और वो लोगों के पैरों के बीच में से ही होता हुआ चिल्लाता हुआ बोल रहा था, मदर, फादर. और मंदिर के एंट्रेंस में तो बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ होई हुई थी. एक दूसरे को लोग पुश कर रहे थे, धक्का मार रहे थे, और अपनी क्रूल आईज से एक दूसरे को देख रहे थे. और जिनके हैवी शोल्डर्स थे वो ज़ोर ज़ोर से धक्का मार रहे थे. लोगों को बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी. और बच्चे ने उनके पैरों के बीच में से निकलने की कोशिश की, लेकिन जो लोगों ने जो धक्का मारा था वो बहुत ज़्यादा मतलब सहन नहीं हो पा रहा था. उन धक्कों के बीच में से वो बच्चा उनके पैरों के नीचे कुचला जा रहा था, और बड़ी ज़ोर ज़ोर से जो ऊंची आवाज़ में चीख रहा था, मदर फादर, मदर फादर. उसी भीड़ में एक आदमी ने उस बच्चे की आवाज़ सुन ली, चीख सुन ली, और बड़ी मुश्किल से वो झुका और उसे अपने हाथों में उठा लिया. हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड? हुज बेबी आर यू? द मैन आस्क्ड. ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास. द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, want my father. स्टीयर्ड यहाँ पर है केम आउट, यानी बाहर निकाल लिया. सूद मीन्स कंसोल. तो यानी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उस बच्चे को जब बाहर निकाल लिया गया, उस भीड़ में से उस आदमी ने उस बच्चे को बाहर निकाल लिया. फिर उससे पूछा कि बेटा तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम किसके बच्चे हो? पर बच्चा और भी ज़्यादा रोने लगा और कहने लगा, मुझे मम्मी चाहिए और मुझे पापा चाहिए. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked. As he approached the ring, the child's throat tore into 1,000 shrill sobs, and he only shouted, I want my mother, I want my father. Soothe means console, यानी शांत करना. उस आदमी ने उसे शांत करने की कोशिश की, उसे राउंड अबाउट के पास ले गया और बड़े प्यार से झूले के पास ले जाकर उसे ऑफ़र किया
घोड़े की सवारी करोगे? तो बच्चा और भी ज़ोर ज़ोर से सिसकियां भरने लगा और चिल्लाने लगा कि मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain. I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. Headed means went ahead यानी आगे की ओर बढ़ना. Swaying means swinging यानी झूलते हुए. Distract means divert attention. Quieten means make calm. Persuasively means making ready यानी मनाते हुए. अब जो वहाँ जो आदमी है वो कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से बच्चा चुप हो जाए, तो आगे बढ़ते हुए उनको स्नेक चार्मर दिखाई दिया जो अभी भी क्या कर रहा था, वो अपना जो बांसुरी था वो बजा रहा था और जो नाग था, कोबरा था, वो झूम रहा था. और उसने बड़े प्यार से कहा, बच्चे सुनो इस नाइस म्यूज़िक को. तो बच्चे ने अपनी उंगलियों से कान ही बंद कर लिए और बड़ी 2 गुना तेजी आवाज़ में बड़ी ज़ोर से चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. उसके बाद जो आदमी है वो फिर उसे आगे ले गया और गुब्बारों की तरफ ले गया, और गुब्बारे जो थे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टन कलर्स के थे और उसका ध्यान, बच्चे का ध्यान उसी तरफ उसका डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा था. उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करके मतलब वो चाह रहा था कि बच्चा किसी भी तरह से चुप हो जाए. तो उसने फिर से ऑफ़र किया, बड़े प्यार से पूछा, बेटा क्या तुम ये रेनबो कलर बलून लोगे? तो बच्चे ने जो बलून उड़ रहे थे उस तरफ से अपनी आंखें ही फेर ली और दोबारा से सिसकते हुए बोला, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? अब जो आदमी है वो कोशिश कर रहा है बच्चे को खुश करने की, तो उसने उसे कहाँ ले गया, वो फ्लावर सेलर जो बैठा हुआ था गेट के पास उधर ले गया और उसको कहता है, उसे ऑफ़र कर रहा है, बेटे क्या तुम इन जो अच्छे अच्छे फूल हैं इनकी स्मेल सूंघ सकते हो, इनकी फ्रेगरेंस आ रही है, क्या तुम्हें गले में डालने के लिए माला चाहिए? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob. I want my mother, I want my father. बच्चे ने उस टोकरी से अपनी नाक ही टर्न कर ली, साइड कर ली और सिसकते हुए रिपीट करने लगा. रीइटरेट मीन्स रिपीट, दोहराने लगा बार बार कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. Disconsolate means very sad, बहुत ज़्यादा उदास. Humor means amusement यानी खुशी. अब जो उदास बच्चा है उसको मिठाई देकर खुश करने की बात सोचते उस आदमी ने कहा कि चलो तुम्हें मिठाई की दुकान पर लेकर चलता हूँ, और उसने ऑफ़र किया, बेटा कौन सी मिठाई लेना चाहोगे? तो बच्चे ने अपना मुंह मिठाई की शॉप से ही फेर लिया और सिर्फ सिसकियाँ लेते हुए बोलने लगा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए.
अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कि मैं आपके लिए और भी एक्सप्लेनेशंस लेकर आ सकूं और एनकरेजमेंट मिले मुझे। थैंक यू सो मच।